Some of the parents requested me that ma'am please explain the chapter in Hindi. We don't understand in English language. So today I am explaining this chapter in both languages, Hindi and English. Okay. Hello children. This is your English class and today I am going to explain you chapter 1 of English Reader, Mr. Toad Goes for a Ride. I will explain this chapter in both English and Hindi. Let's start. One day, Rat and Mole went to meet their friend Toad. Mr. Toad was sitting in the garden and seeing Rat and Mole and welcomed them warmly. Hooray! You are just the friends I wanted to see. So, Rat and Mole was confused. Why was he happy? They thought that it was about his new boat, they suppose. Then Mr. Toad said, "Oh pooh, boating. It's a just waste of time. I gave that up long ago. Now I have found the new interest. I have found the real thing. Come with me and see the real thing. Come with me to the stable yard." Toad was very excited to show their new interest. Toad led them to the stable yard and showed them a bright, beautiful yellow carriage and said, "This is my new interest. This is full of travel, change and excitement." Then Mr. Toad said, "Why don't we go for a ride this afternoon?" Then Rat said, "I am not coming." Mr. Toad and Mole tried to convince Rat. They said, "But Rat, it might be fun." Mr. Toad said, "Come on Rat, I just only want you fellows to have fun. It will be fun." Finally, Rat agreed to go for a ride with their friends. Then their three friends drove through the town. Toad was very proud of his carriage. All the people who were passed by them stopped and greeted them and said, "Oh my, what a beautiful carriage, what a beautiful carriage. Good day, Mr. Toad." Suddenly, they heard a vroom vroom sound behind them. They saw a motor car sped past them, leaving a huge cloud of dust. It stopped the carriage. It upset the carriage. Then Rat, Mole and Toad said, "Hey, can't you see and drive?" Their carriage fell into a ditch. After this, Rat was very angry. He said, "I will complain to the police." But Toad was very surprised. He was under a spell because he found a new interest. He found a new thing. After seeing that thing, he said, "What a glorious sight, what a beautiful thing it is." Then Rat thought, what happened to him? He said, "Now what do we do with him?" Then Mole said, "Nothing. When he likes something new, he thinks of nothing for else sometime." Then Rat said, "Toad, you have to go to the police station and file a complaint against the driver." After hearing this, Toad said, "Police station, complaint, and me? Never. I'll never complain against that wonderful motor car." Then Rat said to the Mole, "You are saying he is quite hopeless. I give up. I can't do anything." Then Mole said, "But we can't leave him here." Then Rat said, "Fine, but I will never ever go on a trip with Mr. Toad again." Now children, I am explaining this chapter in Hindi. One day Rat and Mole went to meet their friend Toad. एक दिन Rat और Mole अपने friend Mr. Toad से मिलने जाते हैं.
टोड वॉज सिटिंग इन द गार्डन एंड वेलकम दैम वार्मली। टोड, जो मिस्टर टोड होते हैं, वो अपने गार्डन में बैठे होते हैं और वो बहुत खुशी से, बहुत दिल से उन लोगों का वेलकम करते हैं और उन्हें देख के बोलते हैं, हुर्रे, यू आर जस्ट द फ्रेंड्स आई वॉन्टेड टू सी। और उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हें ही देखना चाहता था। इट इज़ अबाउट रोइंग योर न्यू बोट आई सपोज। तो रैट बोलता है, मुझे लगता है शायद ये तुम्हारी न्यू बोट के बारे में है। ओ पू, बोटिंग, इट्स अ सिली वेस्ट ऑफ टाइम, आई गिव दैट अप लॉन्ग एगो। तो मिस्टर टोड बोलते हैं कि बोटिंग वो तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और वो मैं काफ़ी पहले छोड़ चुका हूँ। आई हैव फाउंड द रियल थिंग, कम विद मी टू द स्टेबल यार्ड एंड सी। अब मुझे कुछ नया मिला है और तुम लोग मेरे साथ आओ स्टेबल यार्ड में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टोड लेड दैम टू द स्टेबल यार्ड एंड शोड दैम अ ब्राइट येलो carriage. There is real life for you in that little carriage, travel, change and excitement. फिर टोड उन्हें अपने स्टेबल यार्ड में लेके जाता है। स्टेबल यार्ड जहाँ पर घोड़ों को बांध के रखा जाता है, वहाँ ले जाकर वो उन्हें अपनी बहुत सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, चमकती हुई येलो कैरियज मीन्स घोड़ा गाड़ी, वो उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी दिखाता है और उन्हें बोलता है कि इस छोटी सी घोड़ा गाड़ी में, इस छोटी सी कैरियज में बहुत फ़न है, इसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा मज़ा है। वाई डोंट वी गो फॉर अ राइड दिस आफ्टरनून, आई एम नॉट कमिंग बट रैट इट माइट बी फन। तो मिस्टर टोड बोलते हैं, क्यों ना हम इस दोपहर में एक राइड के लिए चलें, हम घूमने के लिए चलें। तो रैट बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ। तो मिस्टर टोड बोलते हैं कि रैट, इसमें बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत फ़न करेंगे। कम ऑन रैट, आई ओनली वॉन्ट यू फेलोज़ टू हैव फ़न। मिस्टर टोड रैट को बोलते हैं कि चलो ना रैट, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग मज़े करो। फाइनली रैट एग्रीड टू गो फॉर द राइड। द थ्री फ्रेंड्स ड्रोव थ्रू द टाउन। फिर तीनों फ्रेंड्स, रैट एग्री हो जाता है उन लोगों के साथ जाने के लिए और तीनों फ्रेंड्स वहाँ से ड्राइव पर निकलते हैं, टाउन में घूमने के लिए जाते हैं। टोड वॉज प्राउड ऑफ हिज कैरियज, पासर्स बाय स्टॉप्ड एंड ग्रीटेड दैम। टोड को अपनी कैरियज, अपनी घोड़ा गाड़ी पर बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था, क्योंकि उसकी घोड़ा गाड़ी बहुत सुंदर थी। पासर्स बाय स्टॉप्ड एंड ग्रीटेड दैम, जितने भी यात्री थे, जितने भी लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, वो वहाँ रुक रहे थे और उन लोगों को ग्रीट कर रहे थे, उन लोगों को बधाई दे रहे थे, बोल रहे थे, ओ माय व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरियज, गुड डे मिस्टर टोड। वो लोग मिस्टर टोड को बोल रहे थे कि कितनी सुंदर कैरियज है आपकी, कितनी ब्यूटीफुल कैरियज है, और मिस्टर टोड को गुड डे विश कर रहे थे। सडनली दे हर्ड अ व्रूम व्रूम साउंड बिहाइंड दैम। अचानक से उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे एक व्रूम व्रूम साउंड सुनाई देता है। अ मोटर कार स्पेड पास दैम एंड लीविंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट इट अपसाइड द कैरियज। वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो उन्हें एक मोटर कार तेज़ी से आती हुई दिखाई देती है, जिसके साथ एक बहुत धूल का क्लाउड उड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो घोड़ा गाड़ी रहती है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। हे कांट यू सी एंड ड्राइव। तो मिस्टर टोड, रैट और मोल उस मोटर कार ड्राइवर को बोलते हैं, क्या तुम देख के नहीं चला सकते हो। द कैरियज फेल इनटू अ डिच, रैट वॉज एंग्री, आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। तो उनकी जो कैरियज रहती है, उनकी घोड़ा गाड़ी गड्ढे में, डिच मीन्स गड्ढा, उनकी घोड़ा गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, जिसकी वजह से रैट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं पुलिस से कंप्लेन करूँगा। कंप्लेन मीन्स शिकायत, मैं पुलिस से कंप्लेन करूँगा। बट टोड सीम टू बी अंडर अ स्पेल, ही फाउंड अ न्यू इंटरेस्ट। बट जो टोड था वो तो एकदम सरप्राइज हो गया था, बहुत शॉक्ड हो गया था उस मोटर कार को देख के। अब उसे एक नया इंटरेस्ट मिल गया था, नई चीज़ मिल गई थी। वॉट अ ग्लोरियस साइट, वॉट अ मैग्निफिशेंट थिंग। उस मोटर कार को देख के वो बोलता है, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितना सुंदर नज़ारा है। उसको देखकर, मिस्टर टोड को देखकर रैट बोलता है, अब इसे क्या हुआ। वॉट डू वी डू विथ हिम, अब हम इसका क्या करें। मोल सेड नथिंग, वैन ही लाइक समथिंग न्यू ही थिंक्स ऑफ नथिंग एल्स फॉर सम टाइम। मोल बोलता है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाता है। लुक टोड, यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द
ड्राइवर, पुलिस स्टेशन, कंप्लेन, मी, कंप्लेन अबाउट दैट वंडरफुल मोटर कार, नेवर। तो रैट टोड को बोलता है, टोड तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा और इस ड्राइवर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी होगी, इस ड्राइवर की शिकायत करनी होगी। पुलिस स्टेशन और कंप्लेन, मैं इस वंडरफुल मोटर कार के अगेंस्ट कभी कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। यू सी ही इज़ क्वाइट होपलेस, आई गिव अप, वी कांट लीव हिम हेयर, फाइन बट आई विल नेवर गो ऑन अ ट्रिप विथ टोड अगेन। देन रैट बोलता है कि तुम देख रहे हो ये कैसे होपलेस हो गया है, इसका क्या करें। तो मोल बोलता है हम इसे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देन रैट बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं कभी भी टोड के साथ किसी भी ट्रिप पर नहीं जाऊँगा। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।